everyone, and thanks for joining. So I hope I'm audible, and we are about to start the session. This session will be totally based upon how we are doing broadcasts. It will be a full-fledged live session, and we have curated this session as you are doing a live broadcast. Today we are having our teammates like we are having Nupur, we are having Anushka, we are having Umesh who will join in a few minutes, and also we are having Tushar. So I hopefully this will be a very good session, and you will learn something new, new technology, whatever we are using, and it will be beneficial for all of us. So before starting anything, if anybody is in Mumbai and wants to visit our studio, so we are open for everyone. So if you want to come, just ping us and come to our premises. Definitely you'll have a better understanding how our studio runs, right? So yeah, so give us 2 minutes. We are starting. Welcome to the session on webinar on broadcast design without boundaries. Today we will discuss how we can proceed with any broadcast design process for the sports channel, news channels, as well as some live streaming also. But today we will discuss more on broadcast, especially sports channels, right? So in sports channels, you know that currently there's a best example. It's your Asia Cup 2025, right? So I'll just show you that small clips of that Asia Cups. So we'll get to know easily, understand easily the overall process of broadcasting. So as you can see on your screen, webinar on broadcast design, right? So broadcast as a word is a larger word, right? It's a huge word in terms of there are a lot of technology involved, software involved, right? Even some kind of not some many type of cameras you can use it for that. From you can use from mobile to your film cameras up to. So there are a variety of range you can easily get it in broadcast, right? So typically broadcast, it's a news channel. You are very aware of that. Sports channels, you are very aware of that. तो हम वही पॉइंट पे हम बात करेंगे. स्पेशली हम लोग आज बात करेंगे स्पोर्ट्स को लेके बात करेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है अभी बहुत ज्यादा लोगों को पसंद भी आ रहा है, मजा भी आ रहा है, खेलते भी है. तो उसका ब्रॉडकास्ट कैसे होता है तो शायद सबको नहीं पता चल रहा है. ओके, तो आप देख रहे हो कि मैं कंटेंट एक फ्लो बनाया है. कंटेंट में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज ब्रॉडकास्ट डिजाइन, व्हाट इज ब्रॉडकास्ट एन इंडस्ट्री, रियल टाइम ब्रॉडकास्ट प्रोसेस, रोल ऑफ अनरियल इंजन and Xemetry in broadcast, tools available for the broadcast. Okay, so what is broadcast first of all? So broadcast is nothing, it's just a mix of it's a practice, you can say, which involves art rights to create visual content, better visual content, I can say, for the television, online streaming, as well as other broadcast media also. So let me show you that clip here. You can see this. This is the beauty of that broadcast, right? एशिया कप. और इसमें मोशन ग्राफिक्स आप देख रहे हो, जो वो सब आप मोशन ग्राफिक्स, जैसे ये अभी एक आपके पास देखने को मिला फिलर जो मिला आपको, फिलर के बाद एक पूरा प्लेट आ गया, मैच 16 लिखा हुआ है, तो इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है मैच का कि क्या है आज का मैच, क्या है मैच 16. तो ये सब जो है ना लाइव होता है. देयर इज नो ऑफलाइन प्रोसेस इन ब्रॉडकास्ट. जो भी होगा वो लाइव होगा. तो आप यहाँ पे देखो, जैसे ही प्ले कर रहा हूँ तो यू विल गेट टू नो दैट कि इन्फॉर्मेशन आ रही है स्क्रीन पे विथ क्रिएटिवली. पीछे आपको लाइंस दिखेगी, जो मोशन ग्राफिक्स जो आपको ओवरऑल आपको देखने को मिल रहा है. मोशन ग्राफिक्स ओवरले है किसके ऊपर? आपके वीडियोस के ऊपर, मींस कैमरा फीड के ऊपर जो वहां से शूट हो रहा है. तो वही सेम प्रोसेस अगर आप चाहते हो कि आप कैसे यहाँ पे बना सकते हो, स्टूडियो में कैसे बना सकते हो, बिकॉज इट्स अ known process and very old process also, but nowadays the 3D integration जब से आया है तब से ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफाई हो गया है. ओके, तो अभी जो भी आप देख रहे हो इट्स जस्ट अ स्विचर. क्या आप में एक वीडियो फीड आ रहा है जो कैमरा का फीड है, जिसमें स्टेडियम दिख रहा है आपको, ऊपर एक आपको मोशन ग्राफिक्स दिख रहा है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टीम्स का. तो ये सब जो है आप आराम से वहां पे बना सकते हो, ट्रिगर भी कर सकते हो आप विद इन एक्समेट्री एंड अनरियल इंजन आल्सो. ओके, तो ये देखो आपको यहाँ पे दिखेगा कि
टीम जो है, मतलब इंडियन टीम जो है बैटिंग करने आ रही है। इवन लेफ्ट साइड पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एशिया कप का लोगो। तो ये सब जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेगी इन योर एनी स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट। उसके साथ साथ स्कोर कार्ड आता है, लोअर थर्ड आता है, ओके। बहुत सारे अलग अलग फैंसी ग्राफिक्स आते हैं जो पब्लिक को अट्रैक्ट करते हैं और उसको रिच बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडकास्ट। सो आप कोई भी जगह पे जाओगे ना तो ब्रॉडकास्ट जो है आपको बहुत जगह पे, मतलब अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइप की क्वालिटीज वाला ब्रॉडकास्ट मिलता है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आता है ना ब्रॉडकास्ट, वो 2-3 कंट्री का बहुत ज्यादा पसंद आता है। इंडिया भी अभी वन ऑफ देम है, उसमें भी इंडिया भी अभी बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है उसके अंदर। जैसे रशियन की भी आप ब्रॉडकास्ट देखोगे तो Russian broadcast also you can consider as a good quality of broadcast, right? In terms of motion graphics and design, right? US also, UK also, and Germany you can consider, right? So there are so many countries are good in broadcast design. So today again go back with my this presentations, right? So as I said, it's art and practice of creating visual content for television, online streaming and other broadcast media. तो यही सेम चीज जो है ना हम लोग बात करेंगे। इवन मेरे पास एक और भी क्लिप है जो एशिया कप का बिफोर एंड आफ्टर एक्स्ट्रा इनिंग जो होता है उसका। तो आप देखो यहाँ पे, मैंने मोबाइल से रिकॉर्ड किया था ये। तो whatever you can see on your screen ना, the background it's a 3D and the cricketers it's a live feed from the camera. तो ये सेम प्रोसेस जो है ना हम लोग आज देखने वाले हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि रियल ब्रॉडकास्ट में कैसे होता है। हालांकि उसके आगे और भी बहुत सारे स्टेप्स है, बट हम लोग फोकस्ड कर रहे हैं हम लोग ब्रॉडकास्ट डिजाइन के ऊपर, मोशन ग्राफिक्स के ऊपर, इवन उसका रियल टाइम प्लेबैक को लेके। तो हम वही बात करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में देखोगे तो पीछे एक सेट है, स्ट्रीट वाला बनाया हुआ है। वो आप किसी में भी बनाओ, आप अगर इफ यू नो 3D एप्लीकेशन, ब्लेंडर, मैक्स, माया, anything, but end of the day you need a Unreal Engine to integrate with the Ximetry. So we will see the process laterly. So this is your recent example of Asia Cup where you can see background as well as that cricketers, right, former cricketers commentary something, right, and after batting or after bowling part they are discussing the plus and minuses of that match. So yeah, so let me put the next slide. So let me show you one of the example of our academy students, right? So here you can see it's a countdown, right? So this is a pillar. Now these are virtual sets, if you notice that, and this is your camera field against green screen. I will show you later on my setup in this studio. So here you can see the background, also beautiful motion graphics have, right? The TVs and some logos, even you can say 3D elements, live animations, right? You can trigger at any time. You just press one key, you will get a 3D animations. Even that motion graphics of scorecard, right? Each and every different teams are contributing this Jungle Cup. So this is the way of semi-final and final. So it's a motion graphics. You can make it in any compositing softwares, preferably After Effects. So here, that's the best part. If you check this, see that logo of Tiger Club, Shark Bite, visible on screen, as well as that camera feed, as well as your 3D background, which is your CG part. So let me show you. These are again transitions. The symbolic shark and tiger. There is the camera movement, you can see. Even that lower third also, it is lower third.
एंड if you notice that lower third में आप लोग scroll देख रहे हो आप, even beautiful PNG sequence played superimpose on footage, right? Here you can see this, so that you can do easily using Unreal Engine as well as Xzimetry. So yeah, so that's the thing. Now let me show you the making. So in making, this is my camera Lilliput, right? Now if you checked it, it's a live, there is no post work, it's a green screen, and this is your Lilliput. So this is my studio. I will show you the live example. See the concept art, how I developed that 3D studio, the different motion graphics inbuilt in your Unreal Engine. This is your Xzimetry interface. We are just testing with the students. Teleprompter. So it's the same as your Asia Cup type of before and after match discussions, right? In this video. So this is all about your sports broadcast, right? Now let me go into next slide. Broadcast as an industry. So broadcast in an industry, when I say, it covers a lot of things. News channel also. So in news channels, if you notice that whenever have a election time, at election time, it's a very dynamic as a informations, right? When I say information means it's a text, numbers. तो नंबर क्या अपडेट होता रहता है थोड़ी थोड़ी देर में, तो वो डायनामिक जो है वो आप यहाँ पे भी आप मैनेज कर सकते हो. ओके, स्पोर्ट्स चैनल्स, क्रिकेट का एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दिया आप लोगों को. तो क्रिकेट के एग्जांपल में आपको बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं जो डायनामिक होते हैं, दैट यू कैन डू आल्सो. लाइव ऑनलाइन स्ट्रीमिंग आल्सो, आपको कोई जरूरी नहीं कि ब्रॉडकास्ट ही करना, यू शुड यूज योर लाइव ऑनलाइन स्ट्रीमिंग आल्सो. आप ग्रीन स्क्रीन पे शूट कर रहे हो और बैकग्राउंड में कुछ और आ रहा है, राइट? आपने जो भी डिफाइन किया है, जो भी डिजायर्ड आउटपुट है वो, करेक्ट? सो दैट्स द वन थिंग. नाउ लेट्स जंप इनटू नेक्स्ट स्लाइड. So real time broadcast process, what is that real time? First you have to understand. So real time is you can say whenever you shoot directly, it's a broadcast through some hardware, right? So that's the process. It's a that's why we call it as a real time. Now there's a very process. The process is content acquisitions. You can see it's a capture. Capture means feed from the cameras, right? Ingest and signal routing. So whatever you captured, this goes to the some departments, right? Broadcast department. There they broadcast it, but parallelly that also live productions, also real time mixings, the switchers, right? For an example, in cricket example, if you notice that whenever जो भी बॉलर है आपका बॉलिंग डालने के लिए रन अप लेता है, उसका लॉन्ग शॉट आता है, जैसे ही बॉल डालने के लिए क्रीज पे आता है तो बैट्समैन व्यू आता है, मतलब सॉरी बॉलर व्यू आता है, एंड बैट्समैन को आप स्क्रीन पे देख सकते हो बॉल हिट करते हुए, राइट? तो वो सब जो स्विचिंग है ना, ये दोनों डिपार्टमेंट मिलकर करते हैं, राइट? फिर आता है रियल टाइम ब्रॉडकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट डिजाइन. तो रियल टाइम ब्रॉडकास्ट डिजाइन क्या होता है? तो आपने जो भी डायनामिक फिगर्स है या आपके जो भी मोशन ग्राफिक्स है वो आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो स्विचर के थ्रू. तो स्विचर की आप अगर यूज करो एक्जीमेट्री तो हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है, बट प्रोफेशनली दे यूज द हार्डवेयर. बाय हार्डवेयर इज वेरी इजी, आपको कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिल नहीं कराता है, क्योंकि आप जैसे ही सॉफ्टवेयर में जाओगे तो सॉफ्टवेयर नीड्स लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ नॉलेज
बिकॉज यूजर इंटरफेस ही आपका इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो आप समझ नहीं पाओगे। हाँ, कोई जो एक्सपीरियंस बंदा है, दे आर वेरी यूज टू, राइट। बट अगर न्यू कमर है या कम एक्सपीरियंस वाला है तो उसको बहुत तकलीफ हो सकती है, करेक्ट। तो वो एक पार्ट है रियल टाइम ग्राफिक्स एंड ब्रॉडकास्ट डिजाइन। सो यहाँ से आगे लाइन जाती है एनकोडिंग इन कंप्रेशन। मतलब जो भी आपका डेटा रिकॉर्ड होता है वो रॉ डेटा कैप्चर होता है, तो रॉ डेटा तो ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकता, तो वो ऐसे हार्डवेयर रहता है बीच में जो आपके शूट को, डेटा को वो ऑप्टिमाइज करता है, कंप्रेस करता है, फिर उसको ट्रांसमिशन के लिए भेजता है। तो ट्रांसमिशन जैसे यहाँ पे आओगे तो जो कंप्रेशन अप्लाई हुआ है वो यहाँ पे ट्रांसमिशन होकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और एंड पे आपको एंड यूजर के पास चला जाएगा, जो आपका आप ही हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, जो टीवी लोग देखते हैं, राइट। तो टीवी वाला जो ऑडियंस है वो एंड में आता है। तो दिस इज योर प्रोसेस। तो यहाँ पे कोई डाउट है यहाँ तक कोई समझने में? इज देयर एनी डाउट आशीष सर? नो, ओके, सो गुड। तो रोल ऑफ अनरियल इंजन एंड एक्सिमेट्री इन ब्रॉडकास्ट, ये बहुत बड़ा आपका काम आसान कर देगा ये दोनों सॉफ्टवेयर मिलके। तो अनरियल इंजन, तो अनरियल इंजन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो 3D हाइपर रियलिस्टिक वर्चुअल सेट्स, जैसे अभी आप लोगों ने एशिया कप में देखा, राइट। यहाँ पे स्टाइलाइज भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आपको रियलिस्टिक ही हो, इट डिपेंड्स ऑन द थीम। तो ये हो गया रियल टाइम इंटरेक्टिविटी। अब रियल टाइम इंटरेक्टिविटी मतलब क्या? रियल टाइम इंटरेक्टिव मतलब कि आप जब भी कोई भी चीज अपने हिसाब से चेंज करना चाहो तो चेंज हो जाए। मैं जैसे ही आप एक्सीमीटर में जाओगे तो मैं दिखाऊंगा कि ये क्या है। मोशन ग्राफिक्स, तो आप लोगों ने देखा ही कि एशिया कप के अंदर स्टार्टिंग में बहुत सारे मोशन ग्राफिक्स आए थे, फिलर्स आए थे, राइट, ट्रांजिशंस आए थे। तो ये सब मोशन ग्राफिक्स में कवर होता है, जो आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हो। अगर 3D मोशन ग्राफिक्स बनाना है तो आपको मैक्स, माया, ब्लेंडर, इवन अनरियल आल्सो कैपेबल फॉर दैट। तो ये की हो गया। अब 2D कंपोजिट, 2D मोशन ग्राफिक्स बनाना है तो आप आराम से यूज कर सकते हो आपका आफ्टर इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट्स इज वेरी वेल नोन, राइट। इवन दैट known applications, cinema 4D, तो सिनेमा 4D also very known for that motion graphics। बट या आप जैसे ही इसको अनरियल में लेके आओगे तो आइदर इट शुड बी 3D और एक्सीमेट्री में डायरेक्टली लेके आओ 2D। तो अनरियल के अंदर आपका 3D और एक्सीमेट्री के अंदर 2D। मतलब 2D मतलब आफ्टर इफेक्ट से जो रेंडर मारा है आपने या प्रीमियर से जो रेंडर मारा है आपने, तो वो हम लोग को चाहिए, राइट। मल्टी कैम सपोर्ट्स, क्योंकि आप जब भी अनरियल सेट्स को एक्सीमेट्री में लेके जाते हो तो अनरियल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो एक्सीमेट्री एक टूल बना के देता है जो आपको आराम से ब्रिज करके देता है। ओके, तो ब्रिज करने के लिए आपको कोई भी चीज चाहिए होती है, राइट, तो वो एक्सीमेट्री हेल्प करता है अनरियल को, और अनरियल उसको टूल को यूज करके वो एक्सपोर्ट करता है एक्सीमेट्री के लिए, राइट। तो ऐसा कोई भी आप लोगों को पता ही है कि आप हुडिनी यूज कर रहे हो या माया यूज कर रहे हो, ब्लेंडर यूज कर रहे हो, तो उसके बाद बहुत सारे ब्लेंडर में बहुत सारे एड ऑन आते हैं, माया में बहुत सारे प्लगइन आते हैं। मोशन ट्रैकिंग, बोलूँ तो नहीं, आपको हार्डवेयर तो चाहिए ही चाहिए। विदाउट हार्डवेयर यू कैन नॉट मेक इट। सो लाइव लिंक अगर किसी को ही करना है तो हार्डवेयर तो आएगा ही बीच में, विदाउट हार्डवेयर आप नहीं बना सकते। मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में कि हमारा जो सेटअप है उसमें कैसे वर्क किया है। तो भी अभी ये सारा डेटा जो है ना आपको एक्सीमेट्री में लेके जाना पड़ता है, और एक्सीमेट्री क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? मल्टी कैम स्विच ऑपरेशन, ये दिख रहा है आपको? तो आपके पास एक से ज्यादा कैमरा है, जैसे स्पोर्ट्स में होता है मल्टीपल बहुत सारे कैम होते हैं, तो वो कैमरा का स्विचिंग जो है ना एक बंदा उसी के लिए काम करता है, वो हार्डवेयर बेस्ड रहता है। वो उसको पता है कि बॉलर ने बॉल डालना है तो रनअप लेना है, तो रनअप के लिए ये कैमरा एंगल आएगा। जब बॉल थ्रो करेगा स्टंप पे के पास जाके तो एक दूसरा कैमरा आएगा। जब बैट्समैन हिट करेगा तो तीसरा कैमरा आएगा। बॉल जहां पे भी जाएगा चौथा कैमरा आएगा, वो ट्रैक करते हुए कैमरा जाएगा। वो एरियल भी होगा। तो ऐसे बहुत सारे कैमरा जो है ना आपके मैच में लगे रहते हैं, वो प्री इंस्टॉल्ड रहते हैं।
M3 कनेक्टेड विद दैट सॉफ्टवेयर, करेक्ट। तो ये जो चीज है आपको समझनी पड़ेगी, मल्टी कैम स्विच ऑपरेशन इज नथिंग, जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर आप ये कीपैड पे आप प्रोग्राम करते हो तो 1 दबाओगे तो 1 नंबर का कैमरा एक्टिवेट होगा, 2 के ऊपर दूसरा कैमरा प्रोग्राम किया है तो 2 पे वो कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बहुत सारी चीजें हैं, तो ये उसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है आपका अनरियल इंजन वर्चुअल सेट इंटीग्रेशन। आपने जो भी अनरियल के अंदर सेट्स बनाए उसको आप एक्समेट्री लिख के जाओगे जब, तो उसका इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करना है, उसको अलाइन करना पड़ेगा आपके हिसाब से, जो प्रोजेक्ट का नीड है उस हिसाब से आपको काम भी करना पड़ेगा। तो आपको वर्चुअल सेट्स आपको अनरियल एक्समेट्री में लाना पड़ेगा, अनरियल टू एक्समेट्री। दूसरा है इंटरएक्टिव अपडेट। तो इंटरएक्टिव अपडेट क्या है? बेसिकली आपने कोई भी एनिमेशन लेके गए, फॉर एग्जांपल मान लो एक कप का एनिमेशन है, तो कप जो रोटेट होके बाहर निकलता है और वापस वो छोटा होके मतलब गायब हो जाता है। मतलब मैं एनिमेशन दिखाता हूँ तो आपको समझेगा, अभी जैसे ही हम लोग स्टेज पे जाएंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो उस टाइप के इंटरेक्टिव अपडेट जो है आप ट्रिगर भी कर सकते हो बाय प्रेसिंग 1 2 3 और एनी की, राइट। तो ये हो गया रियल टाइम क्रोमा। मतलब आप क्रोमा पे शूट जरूर करते हो बट वो रिकॉर्ड करके पोस्ट में नहीं जाता है, मतलब ऑफलाइन प्रोसेस में नहीं जाता है। इट विल बी इन योर एक्समेट्री ओनली, एंड एक्समेट्री very capable to handle real-time chroma removal and composite with your CG elements, correct? CG elements में क्या है अपना, it's a virtual sets। तो virtual set जो है वो आपका रियल टाइम क्रोमा की के साथ वर्क करता है अच्छी तरह से। That fifth one, कैमरा ट्रैकिंग इंटीग्रेशंस। तो कैमरा ट्रैकिंग इंटीग्रेशन में क्या है, हम लोग यूज करने वाले हैं HTC Vive Mars। तो HTC Vive Mars आप देखोगे आपको ये कैमरा सिंक करके देता है, जो मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको। तो क्या है ये, एंड ग्राफिक्स एंड एआर, वॉट एवर द मोशन ग्राफिक्स आपको छोटा मोटा करना है, स्क्रॉल डालना है, तो यू कैन अपडेट लाइव। मतलब टेक्स्ट का तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल है, यहाँ पे आप आराम से लाइव अपडेट कर सकते हो। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जो एक्समेट्री प्रोवाइड करता है। ठीक है, नाउ टूल्स अवेलेबल फॉर ब्रॉडकास्ट, पिज़ाटी आ गया, रोज एक्सप्रेशन आ गया, शायरॉन आ गया। तो ये वेरी नोन है, राइट, अलॉन्ग विथ एक्समेट्री ऑल्सो। ये लोग जो काम करते हैं वही एक्समेट्री में काम करता है। अभी अनरियल इंजन जो है ना मोस्टली सब लोग यूज करते हैं, राइट। तो ये ध्यान रखना, इवन जीरो डेंसिटी भी जो है वो भी अनरियल इंजन यूज करता है। तो बैकग्राउंड में जो भी सपोर्ट है वो अनरियल इंजन का है, उसके ऊपर ओवरले लगा हुआ है, वो उनके कोई ब्लूप्रिंट्स हो गया, कोड हो गया, प्रोग्रामिंग से कुछ डेवलप किया है, प्लगइन डेवलप किया है, तो बैकग्राउंड में बट अनरियल इंजन रहेगा। ठीक है, तो ये आपका टूल्स अवेलेबल फॉर ब्रॉडकास्ट। आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, राइट। तो डिजाइन हो गया, उसका टेलीकास्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट जरूर पड़ती है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, करेक्ट। तो ये है नाउ, यस, रिसेंटली हम लोगों ने एकेडमी ने अवार्ड जीता है, राइट। तो 2 अवार्ड मिले हम लोग को, द गिफ्ट बॉक्स एंड एज वेल एज वन फिल्म फॉर मोशन कैप्चर, राइट। आर्यन लाडेकर करके बंदा नाम है। ये पूरा ग्रुप वर्क था और ये आर्यन लाडेकर का जो है वो आपका मोशन कैप्चर का सिंगल हैंडल्ड प्रोजेक्ट था। तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है। प्लेसमेंट्स भी अभी 5 स्टूडेंट है, बट 6 स्टूडेंट का ऑलरेडी हो गया है, राइट। मैंने अपडेट नहीं किया है पीपीटीज को, बट रिसेंटली टुडे आई केम टू नो 2 स्टूडेंट सिलेक्टेड एट DNAG। तो वर्चुअल प्रोडक्शन के लिए ही, मोशन कैप्चर के लिए ही वो लोग सिलेक्ट हुए, वो लोग। हमारे लिए वो भी एक प्राउड की बात है। दैट्स गुड। करियर ऑप्शंस इन वर्चुअल प्रोडक्शंस, तो बहुत सारे ऑप्शंस है, आप लोगों को पता भी होगा। तो वेड आर्टिस्ट है, फोटोग्रामेट्री एंड स्कैनिंग टेक्नीशियंस है। तो फोटोग्रामेट्री स्कैनिंग एंड टेक्नीशियन जो है ना, ऑलरेडी हमारे 2 स्टूडेंट काम कर रहे हैं अभी इन वॉल्यूम एक्स, जो एक्टर्स के रियल टाइम मतलब कैप्चर करते हैं वो लोग, उसका 3D मॉडल बना के उसको डिलीवर करते हैं, मतलब टू प्रोडक्शन हाउसेस। ये हो गया वॉल्यूम ऑपरेटर, मतलब LED के लिए। मोशन कैप्चर टेक्नीशियंस हो गया,
रियल टाइम कंपोजिटर हो गया, प्रीवियस आर्टिस्ट हो गया, प्रीवियस आर्टिस्ट की बहुत डिमांड है, गेम इंजन ऑपरेटर हो गया, वर्चुअल कैमरा ऑपरेटर हो गया, वर्चुअल प्रोडक्शन सुपरवाइजर हो गया। प्राउड की बात हमारे लिए एकेडमी के लिए एक भी है कि हमारा एक और स्टूडेंट जो है वो दुबई में अभी वर्चुअल प्रोडक्शन सुपरवाइजर बन के गया है, तो हमारे एकेडमी के लिए बहुत प्राउड की बात है ये। तो दैट्स वन थिंग। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एलईडी इंजीनियर, वीडियो इंजीनियर, तो ये सब जो चीजें हैं आप अपने करियर ऑप्शंस में डाल सकते हैं। इवन आप ऐड कर सकते हो स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट के लिए भी, राइट? तो स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट के लिए भी आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन न्यूज ब्रॉडकास्ट के लिए भी जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी जरूरत पड़ती है ये सब चीज। यूएसपी ऑफ द वर्चुअल प्रोडक्शन एकेडमी, ये बहुत सारे एलिमेंट्स है। कैमरा देख लो, 12K कैमरा है, लाइव ब्रॉडकास्ट का सेटअप है, वीआर स्काउटिंग के लिए, परफॉर्मेंस कैप्चर का सूट है, एलईडी वॉल पर आईसीएफएक्स है, डीएमएक्स लाइट्स है, हाइब्रिड वीपी है जो हम लोग अभी बात करने वाले हैं, ब्रेन बार मतलब कंप्यूटर्स, हाई एंड कंप्यूटर्स है, एंड मोशन ट्रैकिंग सॉल्यूशन विच इज कमिंग फ्रॉम द एचटीसी बायोमास। ओके, सो ब्रॉडकास्ट स्टूडियोज और टीवी चैनल्स इन इंडिया, तो बहुत सारे, सब न्यूज चैनल गिन लो आप, सब स्पोर्ट्स चैनल गिन लो, दे आर ऑल यूजिंग इट। इवन रीजनल न्यूज चैनल आल्सो यूजिंग इट। टेक्नोलॉजी ऑन वर्चुअल प्रोडक्शन फ्लोर, हमारे जो फ्लोर पे जो टेक्नोलॉजी है, ये सब टेक्नोलॉजी मैं ऑलरेडी बता दिया आपको। तो लेट्स विजिट अवर एकेडमी फ्लोर, करेक्ट आशीष सर? सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो तो आशीष सर बोल रहे हैं कि आप क्या जो दिखाने वाले हो उसको एक काम करें, डेमो दे लेते हैं। यहाँ डेमो मतलब कि ये देखो ये आउटपुट अभी बना कैसे, उसकी बात करते हैं, करेक्ट? So any which way it's good for us. Let's start with the demo first. यस, Okay, so what we will do, we will do one thing. We are going to show you few hardwares which we are using, and then after that we will shift to our demo for this thing. So I'll request Tushar to handle camera, so that or Tushar, can you handle camera, please? So Tushar is now going to show first hardware of our virtual production academy, which is tracking solution. So we are using tracking solution to tracking solution of our HTC YMAS, and the whatever hardware you are seeing on screen is Mars. Basically, Mars is the brain of our tracking thing. And apart from Mars, we are having two more hardwares. One is our rover, which is in Tushar's hand. And what a rover will do, rover is basically sharing the information of X, Y, and Z axis wherever it is. And by using this thing, we can know where my rover is in 3D field, right? So another hardware is this, we call it what we call it, base stations. So we are having 4 base stations, which you can see. So 4 base stations are basically placed on corners. So by placing them on corners, we are having all our entire studio floor mapped, and all these data again sent to Mars. Rover, again, rover is sharing data to Mars as well. And Mars is compiling all those data and sending it to Unreal Engine. So by doing this, we are connecting our virtual camera to our physical camera. So if I can request Tushar, can you show another rover which we have on our camera? So if you can see that I am having my camera rover on my camera. So however I'm moving my camera, my rover will move, and by using this thing, we are getting our 3D camera track. Apart from that, we are having our LED screen. So if you can show LED screen, yeah, we are using it as a light source currently. But whenever we are doing our ICV effects, our entire 3D scene is going to display on that particular screen, and we are having all those 3D information. So to run this, yeah, again, we are having another set of LED screen which is on site, and they are on wheels. So whenever we are needing it, we are getting it on floor and using it as a light source or any thing. To run this LED screen, we are having our processors, which is our Nova Star processors, which you can see.
we are currently having three Nova Star processors. So each three processors are again doing a bridge kind of system between my PC to my LED, right? So that's the way how we are using processors. Then again, we are having our system. We call it Brain Bar, and we are having i9 processor. Like we are having RTX 4090 Ti 32 GB, Decklink enabled, and whatever hardware we are having, we have all those equipments in our PC. Apart from that, we are having our camera, which is Blackmagic Ursa Mini 12K Pro, and we can shoot till 12K, but right now our floor is on 4K, and this is having inbuilt OLPF filter. We are having ND filters. Apart from that, we are having our DMX lights. These all lights are controlled by DMX, and we can use or control them by using a software called Magic QPC. And few fixed lights we are having, few hanging lights we are having. Hanging lights mostly we are using for character lighting, and fixed lightings are for my chroma, right? So those kind of hardwares we are using. Apart from that, we are having Gen sync generator. We are having tentacles. So those kind of stuffs we are using. So also we are having our fizz. So this little device controls the zoom in, zoom out, or focus thing. So some other day we are going to demonstrate how we are using this thing. So yeah, this is a quick overview of our floor. And right now we are going to show you how a real broadcast works, right? In our setup. So yeah, so let's do a setup and let's start. Okay. Okay. So now I am mostly you guys are having uh, can you confirm once if you're seeing our Xzymetry output? Yes, Ashish, I can see it. Yes. So I'll show you if you can see over here in my Xzymetry output. In right hand corner, we are having a like raw output of green screen, what actual camera is having. And in bigger area, we are having what exactly Xzymetry is doing and how we are using it live, right? So yeah, over to you, Umesh sir. Can you start how we are using it? तो आप कौन बैठेगा बेटा? ओके, ग्रीन बैठा है ना? दिखाएगा. So here you can see आशीष सर जो है वो बैठे हुए हैं स्टूडियो के अंदर, और एकदम क्लियर कट वो रिमूव हो रहा है, बैकग्राउंड को भी रिमूव कर रहा है. अगर आपको मैं बताऊं, ईयर को मैं भी ऑफ कर देता हूं फॉर एग्जांपल, आपको ये दिखेगा, राइट? तो अभी ये क्लियर जैसे ही होता है तो आपको ये क्लीन मिलता है आपको, राइट? तो आपको ब्रॉडकास्ट में लिए कितना ईजी हो जाता है कि यहाँ पे कोई मुझे पोस्ट प्रोसेस नहीं करना पड़ रहा है. तो ये एक्समेट्री का इंटरफेस है. आप लोगों को एक्समेट्री का इंटरफेस दिख रहा है? आउट दिख रहा है ना खाली? हाँ, एक मिनट. हाँ, नाउ यू कैन सी. तो आपको एक्समेट्री का एक आउटपुट दिख रहा है, एज वेल एज आपको दिखेगा ये बहुत सारे नोड्स दिखेंगे, जस्ट लाइक न्यूक और हुडीनी आप बोल दो, उसके ऐसा आपको बहुत सारे नोड्स. ये तो मैंने कम किया है, मतलब बहुत सारे नोड्स आ सकते हैं, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है. तो ये ओवरऑल एक्समेट्री का इंटरफेस है, जहाँ पे ये आपका फोल्डर लोकेशंस आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो. आपने जो भी डेटा स्टोर किया है, जहाँ पे भी आपने सेव करके रखा है, तो यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली, राइट? इवन आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ये नोड स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, जो नोड ग्राफ के अंदर आपको देखने को मिलता है, जैसा न्यूक में होता है वैसा ही है. और दूसरा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मेन्यूज दिख रहा है, मतलब मेन्यूज नहीं बोलूंगा, टैब बोलूंगा. लो, कैमरास, इनपुट्स, ओवरलेस. अभी ये डिपेंड्स है कि आप क्या यूज कर रहे हो, पर अभी मैंने ऑप्टिमाइज करके थोड़ा 4 चीज यूज की है. ऐसे बहुत सारी चीज आप डाल सकते हो जो हम बात करेंगे अभी, राइट? तो यहाँ पे आप देखो
ये मेरा अनरियल सीन है, ये मेरा अनरियल सीन है, राइट। और ये मेरा अनरियल ट्रैकिंग सॉल्यूशंस के साथ जो एक्सिमेट्री देता है मेरे को, तो ट्रैक कैम बोलते हैं ना आप जो। तो कैमरा अगर मैं मूव भी किया, देखो अभी कैमरा मूव हो रहा है, आपकी स्क्रीन पे देखोगे, तो आशीष का भी जो प्लेसमेंट है वो सही तरीके से मूव हो रहा है, राइट। तो एक ये है, तो ये मूवमेंट है जो आपको कंट्रोल करता है, ये वाली एरिया जो है वो। और ये आपका जो है, जो सेट दिख रहा है आपको, वो आपको यहाँ से आ रहा है, जो मैं अभी सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, राइट। ये सब जो नोड है आपको मास्क करने के लिए यूज किया हम लोगों ने, राइट। तो ये है, इवन ये जो 3 नोड है आपको जो दिख रहा है, वो स्क्रीन के लिए है, मतलब जो वर्चुअल स्क्रीन है। अगर मैं कोई चेंज करना चाहूँ, आई कैन चेंज इजिली। तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये तो हुआ नॉर्मल आपका किंग प्रोसेस, और उसके ऊपर सॉरी उसके नीचे जो है आपका बैकग्राउंड आएगा। बट अगर आपको किंग वगैरह कुछ करना है तो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट आपको आइडिया मिल जाएगा। इधर आ जाओ, तो कियर, तो कियर में आप जाओगे, तो मैं पहले ऑफ करता हूँ इसको, इसको यहाँ से ऑन करता हूँ, और यहाँ से लेके मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी आया, ओके किया, बट अभी कुछ हुआ नहीं, तो एक्टिव इज ऑफ। तो आप फीड आउटपुट में जाओगे, आपको ये दिखेगा, राइट। तो ये जब दिखेगा तो आपको नॉइजी बहुत दिख रहा है, तो आपको प्रॉपर लाइटिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप लाइटिंग के बगैर आप कुछ भी कर लो तो चल जाएगा काम, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। तो आपके पास ये लो कट हाई कट दिख रहा है आपको, क्या ये देखो, राइट। तो ये सब प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्टूडियो देखोगे तो मेरा स्टूडियो का जो मैपिंग किया है मैंने, जो 3D पर्सपेक्टिव से, वो इजीली मैच है। मतलब ये मेरा इनपुट था, ये मेरा किंग आउटपुट था, ये मेरा स्टूडियो था, ये फाइनल है, करेक्ट। तो फाइनल में भी आपको किंग में बहुत काम करना पड़ेगा, फिर लाइटिंग आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी, ओके। तो लाइटिंग नहीं करोगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, तो लाइटिंग प्रॉपर चाहिए आपको, ओके। एंड यहाँ से आपको मैं फाइनल कर देता हूँ मैं, जैसे ही फाइनल करोगे आप, तो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आपके बहुत सारे मोड मिलते हैं, जैसा आपको आफ्टर इफेक्ट्स में मिलता है, यूक में मिलता है, आपको अलग अलग टाइप की चीजें मिलेगी, राइट। बट वी आर गोइंग विथ फाइनल। तो आपको ट्रांसपेरेंट एरिया मिलेगा। फिर ट्रांसपेरेंट एरिया को जो क्लिप किया है ना, ये मास्क नोड से किया है मैंने, ये वाला जो मास्क नोड दिख रहा है वो। तो मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ, बस खाली मास्क किया इतना बता रहा हूँ आपको। ये हो गया। हाँ, दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि ट्रैक कैमरा यूज कर रहा हूँ, जैसे अभी तुषार सर ने दिखाया था कि जैसे आप कैमरा मूव कर रहे हो, तो जो प्लेट है वो सिंक है आपका बैकग्राउंड के साथ। तो वो एक बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, ओके। तो ये एक ब्यूटीफुल पार्ट है एक्सीमेट्री का। इवन मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। आशीष सर, आपके पास एक चीज पड़ा हुआ है, ग्लास है जी, आप खड़े होके आप दिखाओगे, नजदीक आओगे, थोड़ा थोड़ा नजदीक हो, थोड़ा थोड़ा खड़े हो जाओ, अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, और बाहर दिखाओ थोड़ा, हाँ। तो आप देखो अभी, ये बहुत ब्यूटीफुली निकालता है पानी वानी सब। इवन मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप ये देखो अभी, ठीक है, देखो, देखिए आपको पूरी बोतल दिख रही है। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट जो आपको देखने को मिलेगा। इवन लाइट रैप भी आपको ऑन कर दोगे, जो आप आफ्टर इफेक्ट्स में, आप न्यूक में, आप जो एडिट करते हो एज को ब्लेंड करने के लिए, मतलब एज एडिट करते हो ना, वो आप लाइट रैप से ही करते हो। तो दैट इज द लाइट रैप, राइट। ये आ गया आपका। तो आपका कैमरा मूवमेंट भी हो गया, आपका सीन क्रिएशंस का भी हो गया। तो सीन की मैं बात करता हूँ, तो एक मिनट मैं ओपन करता हूँ। मैं ओपन करने के लिए मुझे उसको स्टॉप करना पड़ेगा। ये ओपन ब्रॉडकास्ट वाला जो सेट है ओपन करता है। तो यहाँ पे देखो एक बहुत ही सिंपल सेट है, आप जाओगे तो, हालांकि हम लोगों ने ये जस्ट रखा था इसके लिए, क्योंकि हमको प्लान करना है कि ये कैसा लगेगा, इसके लिए मॉडल रखा है हम लोगों ने। अदरवाइज हम लोग रियली यूज करने वाले हैं। तो ये हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर, हो गया आपका ये लाइट्स
स्ट्रिप दिख रही है आपको ब्लू कलर की, वो भी मैं चेंज करके दिखा सकता हूँ। पहले ये 3D देख लो आप। इवन यहाँ पे आपको मतलब आप बोल सकते हो कि ब्यूटिफिकेशन के लिए आप ऐड किया है, ये खाली खाली नहीं लगना चाहिए। इवन स्टेच्यूज रखा हुआ है, एक बैटिंग करता हुआ और एक बॉलिंग करता हुआ। इवन यहाँ पे कप भी है, तो कप का मैं दिखाता हूँ कैसे आप ट्रिगर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एनिमेट हुआ है ये। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको बंद करता हूँ। अगर आपको क्वेरी है यहाँ पे तो यहाँ पे पूछ सकते हो। एकदम लाइट सेट है, रियलिस्टिक टाइप का बनाया हम लोगों ने। एनी क्वेरी, क्वेश्चंस? ओके, सो लेट मी क्लोज दिस। इसको मैं प्ले कर देता हूँ। प्ले जैसे ही करोगे तो वो ऐड हो जाएगा। लोड होने दो उसको। 3D सीन रहता है ना, तो उसका एक टेम्पररी कैच बनाएगा। एक बार कैच बन गया, नॉट एन इश्यू बाद में। तो अभी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग। चलो मैं इसको अभी हटा देता हूँ, यहाँ से ऑपरेट करते हैं हम लोग। तो जो ब्लू कलर दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है आपको? ये देखो, पीछे एकदम फ्लिकरिंग नहीं बोलूंगा, बट कलर चेंज हो रहा है। तो दैट यू कैन डू दैट। लाइट स्ट्रिप का भी आप काम कर सकते हो। क्या करता हूँ इसको, एंड यहाँ पे ट्रॉफी रिवील। तो ये देखो मैंने सेंटर में रखा हुआ है। कल अभी कैमरा मूव किया था इसके लिए, तो वापस क्लिक करोगे तो वापस एनिमेशन ट्रिगर होगा। आप जो भी चाहे वो एनिमेशन बना सकते हो। इवन हाइड करना है तो आपको, मैंने वो भी कंट्रोल बना के रखा है। जैसे ही हो गया हाइड, वापस प्ले करना है तो ट्रिगर पे क्लिक करो। तो आपको क्वेश्चन होगा शायद कि ड्यूरिंग मैच वो एक ग्राउंड वाली चीज दिखाती है, राइट? मतलब जहाँ पे ग्राउंड ही दिखता है और वहाँ पे कुछ 3D एलिमेंट्स दिखाना है, तो वो यहाँ पे वैसे ही दिखाते हैं लोग। बट यहाँ पे दिखाने का तरीका क्या है? ऐसा इन कीबोर्ड पे एक शॉर्टकट डाल दूंगा मैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 9 डालता हूँ, तो मैं जैसे ही 9 करूंगा ना, वापस देखो ये प्ले हो गया। वापस 9 किया, वापस प्ले होगा। जितनी भी बार मैं प्ले करूंगा वो प्ले होगा। तो ऐसे AR एलिमेंट्स को वो ऊपर लेके आते हैं। तो ये ध्यान रखना। इवन इसको भी मैं चाहूँ तो मैं कर देता हूँ 8, राइट? तो अभी अभी 8 प्रेस करूंगा तो वो गायब हो जाएगा। हो गया गायब। तो ऐसे इंटरेक्टिविटी आप डाल सकते हो अपने सीन्स के अंदर। वैसे आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे कि नीचे टीम के नाम दिख रहा है। मतलब जो टीम मेंबर्स है उसके नाम दिख रहा है। जो लेटेस्ट एशिया कप का जो टीम था मैंने वही डाल दिया है। अगर आपको चेंज करना है तो आप आराम से एनी टाइम चेंज कर सकते हो यहाँ से। जस्ट फॉर एग्जाम्पल रैप करता हूँ मैं, राइट? यहाँ पे डालता हूँ हाय दिस इज उमेश पटेल। ओके, फाइल को सेव करो। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक काम करता हूँ, बहुत लंबा लाइन है ना, इसको यहाँ तक लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ तो अपडेट हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो बहुत चिंता की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आऊंगा मैं और उसे कैच में चला गया है ना ये। स्टॉप करो इसको, वापस प्ले करो तो आपको आ जाएगा। इसको सेव करो पहले। सेव। फाइल तो नया नहीं है। ओके, एक मिनट। कंपेयर
scroll. Save. Let me open new window. ठीक है, save, broadcast, test. Save. कनेक्ट तो नहीं किया ना? सेव करना था, तो ये यहाँ से अपडेट कर सकते हो, बट आई डोंट नो। यस, ले लिया उसने। स्टॉप करना था पहले, बाद में प्ले करना है, तो यू विल गेट अ योर अपडेटेड टेक्स्ट। सो एक ये हो गया आपका। इवन आप जब ब्रॉडकास्ट करते हो कोई चीज तो उसकी एक सीक्वेंस होती है, तो पहले इंट्रोडक्शन होता है, आपकी क्या मैच का क्या है। तो मैं फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैं एक ट्रिगर करता हूँ, क्लिक करता हूँ मैं, तो आपको ये देखने को मिलेगा एक मोशन ग्राफिक्स, एक जंगल का नाम भी मिलेगा आपको। तो मैं ऐसा क्लिक कर सकता हूँ यहाँ से, देखो कि टीम के नाम भी आ गया, स्क्वाड भी आ गया, टाइगर स्क्वाड है, शार्क स्क्वाड है ये। इवन आपके कोई जो अपकमिंग मैचेस हो गए तो वो भी आप डाल सकते हो थ्रू मोशन ग्राफिक्स। तो आपको जस्ट क्लियर करना होता है सब चीजें, तो ये सब आप मैप आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैप करने के लिए जरूरत क्या है, राइट क्लिक, असाइन 1, राइट क्लिक, असाइन 2, राइट क्लिक, असाइन 3, राइट क्लिक, असाइन 4, सर राइट क्वेरीज है क्लिक, कुछ। असाइन 5। यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन है सृजा आर्मो का, जो कि है which 3D फाइल फॉर्मेट्स फ्रॉम ब्लेंडर और माया वर्क्स बेस्ट विद एक्सहिबिटर। सी इट्स एफबीएक्स। एफबीएक्स इज अ यूनिवर्सल फॉर्मेट, तो आप कोई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओबीजे भी ले सकते हो, बट एफबीएक्स का फायदा क्या है कि आपका टेक्सचर इंफॉर्मेशन लेके आएगा, तो दैट्स अ फायदा। सेकंड क्वेश्चन है कौन से सॉफ्टवेयर में एडिट किए हैं हर चीज। ये आफ्टर इफेक्ट्स जो है वीडियो मोशन ग्राफिक्स के लिए उन्होंने यूज किया है, एंड इवन 3D मोशन ग्राफिक्स के लिए अनरियल इंजन यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बाबा, दैट इज कैन यू शेयर द लिंक टू डाउनलोड द ब्रोशर ऑफ द कोर्स। अच्छा, वो लास्ट में अपन शेयर करेंगे। मैं दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये की हो गया, तो आप कोई भी चीज जो है ना ट्रिगर कर सकते हो। अभी मैं तुरंत लाइव में जाना है, तो मैं लाइव पे क्लिक कर दूंगा, तो लाइव पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आप 0 कर देता हूँ, तो आप अभी 0 है, राइट। अभी मैं 1 प्ले करना है, तो ये प्ले हो गया। जैसे ये प्ले खत्म होगा, अभी देखो मैं रियल टाइम प्ले करता हूँ, आपको पता होना चाहिए स्टार्ट एंड एंड। ये आ गया आपका, थर्ड पे प्रेस करूंगा तो ये आ जाएगा। तो ये एडिट है, लाइव एडिट है ये आ गया आपका टाइगर टीम का, ये आ गया आपका, राइट 6 ये आ गया। 6 अभी दिया नहीं है मैंने, इसके लिए ये नहीं आ रहा है, 6 दे दूंगा तो ये 6 पे भी चला जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये सब चीजें आप मैप कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट यहाँ ये बहुत प्लानिंग की जरूरत पड़ती है इसके लिए, ऐसा ही नहीं कि आप मन में आया तो डाल दिया आपने, नहीं। तो आपको नोटिस किया होगा आपने क्रिकेट मैच में भी, जो भी बॉलिंग कितनी भी ओवर डले, जो कैमरा एंगल है रिमेन द सेम, सीक्वेंस रिमेन द सेम मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आपको ये आप आइडिया मिल गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, करेक्ट। तो एक और चीज बताता हूँ, तो जैसे क्रॉल की बात कर रहे थे हम लोग, तो क्रॉल में मैंने क्या नोटपैड यहाँ डाल दिया, तो आपको यहाँ नीचे दिखा था, राइट। तो अगर प्ले कर दूंगा तो ये एक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, दिख रहा है आपको, देखो हाय दिस इज उमेश पटेल। ओके, यहाँ पे अभी आप देखोगे तो इसको सेव करो, देखो गैप हो गया यहाँ पे। तो अगर कुछ नहीं होता है तो स्टॉप करो पहले, आपको अपडेट मिल जाएगा।
यस। तो अभी एक दूसरा भी चीज है, आपका कैमरा। जब कैमरा मूव भी करते हो ना, तो आपका कैमरा भी मूव हो जाएगा। तो अभी आपको दिखाते हैं, देखो अभी तुषार सर दिखाते हैं, स्क्रीन पे देखोगे आप, तो कैमरा मूव कर रहा है। इवन आउटपुट लिलीपुट में दिख रहा है, छोटे व्यू फाइंडर में ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है, और बड़े लिलीपुट पे आपको फाइनल आउटपुट दिख रहा है। तो इसका मजा यही है रियल टाइम का, कि आप शूट करो और फाइनल आउटपुट भेज दो या ब्रॉडकास्ट करो। तो ऐसा नहीं कि ब्रॉडकास्ट में ही टेक्नोलॉजी यूज होता है, प्रोडक्शन में आप देखोगे तो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यूज होता है। इवन बहुत सारे एड्स में भी यूज करते हैं पब्लिक अभी, क्योंकि उनको पता चल गया कि भाई अपना खर्चा बच जाएगा। तो एक्सपेंस ऑलवेज रिड्यूस यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो प्रोडक्शन हाउसेज है, छोटा हो या बड़ा हो, प्रोडक्शन हाउस हो, दे आर वेरी अवेयर अबाउट द टेक्नोलॉजी। इवन दैट आप देखोगे यहाँ पे, एक मिनट में लाइव पे जाता हूँ। और हाँ, अगर मुझे कुछ ऐड करनी है ड्यूरिंग दिस वीडियो, तो आप कैसे ऐड करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी कोई भी एक इमेज डालता हूँ, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो मान लो ये इमेज मैं मैप करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे डाल दोगे ना, तो ये आ जाएगा, बट ये स्ट्रेच आएगा। तो आपको प्रोपोर्शंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, राइट। जैसा कि मेरे पास अभी एक था, दिखाता हूँ, रुको एक मिनट। तो आप यहाँ पे जाओगे, दिखाता हूँ आपको यार। ये वाला एक था, क्रिकेट एनालिसिस, ये रहा। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट एक मोशन ग्राफिक्स है यहाँ पे, क्योंकि ये पीएनजी सीक्वेंस के मतलब क्विक टाइम है ये। तो क्विक टाइम ऑलवेज यूज दिस। तो स्टॉप पे तो बहुत सारे मैंने ग्राफिक्स बना के रखा है, ये देखो। और साइज के हिसाब से बना के रखा है, आप देखोगे एक वीडियो है मेरे पास, वो फुल एच डी है, 6:9, बट रिसाइज करके मैंने उसको क्रॉप करके डाल दिया है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना कि आपको क्रॉप करना पड़ेगा, आपको रिसाइज करना पड़ेगा आपकी स्क्रीन के साइज के हिसाब से। इवन आप यहाँ पे भी नोटिस करोगे, तो ये वाली स्क्रीन वर्टिकल है, तो वर्टिकल स्क्रीन में ऑब्वियसली वर्टिकल ही चाहिए अपने को। तो वर्टिकल के लिए आप देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। ये देखो, वर्टिकल्स के लिए आपको बहुत सारे अलग अलग डिस्प्ले, सॉरी इधर ही है, पॉडकास्ट एसेट में एक्समेट्री डेटा एसेट्स। तो यहाँ पे पूरा लाइब्रेरी है मेरा, आप देखोगे तो पूरा लाइब्रेरी वीडियो का बना के रखा है मैंने। तो यहाँ से जो भी चाहिए वो प्लग एंड प्ले डायरेक्टली करूंगा। जैसे कि एक ड्रॉप करके दिखाता हूँ आपको। मान लो ये वेट्स है, फुल एचडी चाहिए मेरे को। चलो ये लगाता हूँ मैं, स्टैंडिंग, ये रहा। चलो मैं ये डालता हूँ। जैसे ही यहाँ पे डालूंगा ना, तो देखो ये प्ले हो गया। मैं क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा। ये, या फिर आप क्लिक करो, या फिर आप की प्रेस यूज करो। 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिया नहीं है मैंने अभी तक, तो असाइन 7, अब 7 में भी आ गए। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ रियल टाइम ब्रॉडकास्टिंग। तो एक ये हो गया। नाउ लेट्स जंप इनटू ऑफिस फ्लो, राइट। तो ये सारी चीज आप देख रहे हो ना अभी जो लाइव हो रही है। अगर रिकॉर्ड करना है तो कैसे करोगे आप, तो मैं रिकॉर्ड करने के लिए बहुत ही सिंपल है, एक रिकॉर्ड डाल लेता हूँ यहाँ पे।
मान लो मैं एक रिकॉर्ड आपका टैब आ गया, तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, लाइव पे चला जाता हूँ और इसको बोलता हूँ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में आपको जो भी आउटपुट चाहिए जो फॉर्मेट में है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ अभी, मैंने रिकॉर्ड स्टार्ट कर दिया। अभी मैं आप देखो 1 प्रेस करता हूँ, तीन पे ही आ गया, 2 पे ही आ गया, सॉरी। अलग अलग टीम्स के टीम मेंबर है। नेक्स्ट मैच आ गया, ये आ गया। ठीक है, आपको ये रिकॉर्ड कर लिया आपने, तो मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। तो जैसे ही स्टॉप किया मैंने, तो यहाँ पे सेव हो गया है ये वीडियो। चल जाओ, ज़्यादा बेटर है। ये देखो क्या नाम से है, रिकॉर्ड नाम से है आउटपुट फाइल नेम। बहुत सारा रिकॉर्डिंग किया हमने, ये देखो ये आ गया। So this is your real time update with your CG elements, animations, right? Motion graphics, पूरा लाइनअप होगा मतलब। मतलब आपको टाइमिंग पता होना चाहिए। जो उसके पास डिटेल रहती है ना, वो क्या होता है कि जब स्विचर पे बैठा है बंदा, उसको स्विच करना है। एक तो उसके पास प्रोटोकॉल होता है कि आपको ये टाइम पे ये स्विच करना है। जैसे बॉलिंग करा तो बॉलिंग के टाइम पे कैमरा एंगल्स जो रहेंगे वो फिक्स होता है उसके पास, तो उसको नंबरिंग दिया होता है, वो नंबर ही प्लेस करना होता है। दैट्स इट, वो रन हो जाएगा। आपने देखा बहुत कम गलती देखी होगी स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट में कि दिखाना कुछ और चाह रहा है और दिख कुछ और रहा है। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है ब्रॉडकास्ट का, क्योंकि प्लानिंग है ना, ये प्लानिंग अगर अच्छा होगा तो आपका बहुत अच्छा काम होगा। करेक्ट। तो ये है एक, कोई डाउट सर अभी तक यहाँ पे? नो डाउट, राइट। सो ये तो हुआ ब्रॉडकास्ट के रिलेटेड बात। आप न्यूज में भी ऐसा ही कर सकते हो। अभी स्टूडियो भले आपका ये दिख रहा है, स्टूडियो भले आपका ये दिख रहा है, आप न्यूज का आगे डाल दोगे, न्यूज का मोशन ग्राफिक्स डालोगे, न्यूज के आप बहुत सारे यहाँ पे सेटिंग दिया हुआ है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। सेव करता हूँ इसको मैं, स्टूडियो। बहुत सारे कंपाउंड्स मिलेंगे, तो प्रीमियम लाइब्रेरी बहुत अच्छा है यहाँ पे। शेडर से बहुत सारे कैमरा रिलेटेड, अनरियल एसेट्स भी है, राइट। जो मैंने बात किया था कि एक्सीमेट्री जो है अलग अलग चीजों के लिए काम करता है। जैसे कि बिलबोर्ड है, तो बिलबोर्ड आप जाओगे यहाँ पे, तो दिख रहा है बिलबोर्ड, ये बिलबोर्ड है। तो वॉट एवर यू कैन सी, तो आप ये बिलबोर्ड 1 पे काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारा कैमरा 1 जो ही है। अगर मल्टी कैम है तो मल्टी कैम में ये आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, आपको जो भी चाहिए हो वो आप यहाँ से एक्टिव कर सकते हो। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट, राइट। इवन स्टूडियो का भी एक 3D सेटअप है जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, कि मेरा जो 3D स्टूडियो बनाया है, इवन मेरा जो फ्लोर है वो सिमिलर है। अगर मेरा कॉर्नर यहाँ पे है तो मेरे इसमें भी कॉर्नर यहाँ पे है। तो ये सब मैंने प्लान करके सेटअप किया है, राइट। तो ये है, तो आप देखो पूरा एक बॉक्स का आप इवन चेंज कर सकते हो, विड्थ हाइट, आपको जो भी चेंज करना है यू कैन चेंज इट। तो आपका स्टूडियो का 3D का पार्ट हो गया। इनपुट में देखोगे तो आपका इनपुट फीड दिख रहा है, फीड में आपको किंग वाला दिख रहा है, स्टूडियो में आपका स्टूडियो वाला दिख रहा है, मतलब 3D अलाइनमेंट है। अब ये करना क्यों जरूरी है? बिकॉज वी आर यूजिंग HTC वायु मार्स। तो वायु मार्स में आप देखोगे तो कनेक्टिविटी का काम करता है। मतलब अनरियल का कैमरा जो है, मतलब जो एक्सीमेट्री कैमरा आपके पास देखने को मिल रहा है, जो आपको अनरियल में भी देखने को मिलेगा। मैं दिखाता हूँ, मैं आपको अनरियल ओपन करके, स्टॉप करना पड़ेगा इसके लिए।
मान लो कहाँ गया फाइल तेरा, मैं ओपन करता हूँ। लेट मी ओपन अनरियल एडिटर फॉर एक्समेट्री। इसके लिए अनरियल अलग आता है बाय द वे, नॉर्मल अनरियल नहीं चलेगा, आपको ये अनरियल डालना ही पड़ेगा, अनरियल फॉर एक्समेट्री। आप देखो यहाँ पे गेम व्यू ऑफ करूंगा तो ये हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो कुछ कैमरा पड़ा हुआ है, राइट, वी कॉल इट एज एक्समेट्री ट्रैक्ड कैमरा। तो ये प्रीसेट्स है, अगर मैं कैमरा मूव करने वाला हूँ तो आई कैन मूव इट ऑल्सो, ओके। तो ये ध्यान रखना, इसमें कुछ चेंज भी करूंगा फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं चेंज कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, ये तो कैमरा की बात हुई, राइट। तो ये नहीं डालोगे तो ये ब्रिज बनेगा ही नहीं, मतलब अनरियल टू एक्समेट्री जाएगा ही नहीं। तो यू हैव टू हैव दैट एक्समेट्री कैमरा। अगर मैं कोई चीज ऐड करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटी देखो लाइव का मजा आएगा आपको देख के। नेक्स्ट पेयर ले लिया, राइट, यहाँ पे कहीं सेंटर पे इसके ऊपर इसको सेव कर दिया, बंद कर दिया इसको। यहाँ पे जाओ और प्ले करो, इसको देखते हैं, लोड होने दो, उसको लोड हो रहा है। तो यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है, द रीजन बिहाइंड इट, वी आर इनटू स्टूडियो मोड। इनपुट मोड में जाओगे तो आपको ये दिखेगा, किंग में दिखेगा, आपको स्टूडियो में दिखेगा। आई देखो आ गया, दैट्स द ब्यूटी कि आपको जब भी कुछ चीज एडिट करनी है तो आप आराम से एडिट कर सकते हो। ये लाइव सिंक मोड में अभी मैं काम कर रहा हूँ। देयर इज वन मोर प्रोसेस, कुकिंग जो है वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट ये भी आप बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हो, करेक्ट। अगर मुझे लगा कि नहीं ये स्टैचू का जो साइज है या फिर मुझे रोटेशन थोड़ा ऐसा करना है तो भी मैं कर सकता हूँ, बट उसके लिए मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, वापस ओपन करना पड़ेगा अनरियल को। जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड में जब काम होता है ना तो ये लाइव सिंक में नहीं होता है। कुक करके एक वर्ड मैंने बोला अभी आपको, तो कुकिंग होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज नहीं काम करेगा। अब मान लो कि मैं यहाँ से इसको पकड़ के मैं तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें अनरियल अनरियल और एक्समेट्री के अंदर। सेव करो इसको, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, ये नहीं चाहिए, राइट। हाँ, आ गया, सेव ऑल, यहाँ पे आ जाओ, इसको प्ले कर दो। ये देखो जो मूर्ति है, मतलब जो स्टेच्यू है वो अपडेट हो गया, उसका एंगल चेंज हो गया है। तो इसके लिए काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, सेव ऑल। एक मिनट, गलती अपनी है, यहाँ से मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, स्टॉप नहीं करोगे तो नहीं होगा। फिर सेव करो तो सेव हो गया, बढ़िया पॉइंट है। इसको बंद करो वरना वो वर्क नहीं करेगा प्रॉपर। आप बोलोगे सर ये तो टाइम ले रहा है, तो लाइव ब्रॉडकास्ट में ऐसा थोड़ी होगा। ये देखो चेंज हो गया पूरा एंगल वगैरह सब। तो ये लाइव ब्रॉडकास्ट में क्या होता है बेसिकली, वी यूज टू कुक। मैं दिखाता हूँ कुक। मीन टाइम कोई डाउट है सर? कोई क्वेरी है या क्वेश्चन से आप पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे जाओगे एक्सीमेट्री तो कुक फॉर एक्सीमेट्री डी। तो अगर ये क्लिक करूंगा ना मैं, तो वो क्या करने का, कैलकुलेशन चालू कर देगा। तो कैलकुलेशन चालू करेगा तो मेरा काम जो है वो, मेरे को टाइम लगेगा, मतलब हो सकता है कि 15-20 मिनट आधा घंटा लग जाए, बट वो बाद में एकदम रियल टाइम हो जाएगा और काफी ऑप्टिमाइज हो जाएगा। अभी जो मैं मोड में काम कर रहा हूँ लाइव सिंक मोड में काम कर रहा हूँ। तो लाइव सिंक मोड में प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको जब भी कुछ चेंज करना है तो चेंज तो हो जाता है, बट वो जब प्ले एंड स्टॉप वाला जो प्रोसेस है ना उसमें ब्लैक स्क्रीन आता है,
वो हमारे काम का नहीं है। इसीलिए जब भी कोई मैच हो या कोई टेलीकास्ट हो, उस टाइप से कुछ होता है, तो उस टाइम पे कोई चेंज नहीं होता है। इसीलिए प्री प्लानिंग की जरूरत पड़ती है ना, इसीलिए स्टोरी बोर्ड की जरूरत पड़ती है, इसीलिए आपने देखा होगा प्रीव्यूज की जरूरत पड़ती है अलग अलग चीजों के लिए। तो फिल्मों के लिए हम लोग काम करते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि आपको मन में आया वो आप कर दोगे, तो आपको प्रॉपर प्लान करके जाना पड़ेगा। अगर आपको इंटरेक्टिविटी चाहिए, कुछ ऐड करना है, बाद में ऐड करना है, शुरुआत में नहीं चाहिए, तो आपको प्लान करना पड़ेगा। वो प्लान करके ही आप यहाँ से लेके जा सकते हो। जैसे हम लोगों ने प्लान किया था ये वाली, ये ट्रॉफी है, तो ट्रॉफी जो है मैं यहाँ से आराम से प्ले कर सकता हूँ अगर मैं इसको बंद करूंगा तो। आप देखो यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे, मैं जस्ट एक मिनट लोड होने दो। हाँ, अभी आप देखो ये ट्रॉफी प्ले हो गई। इवन हाइड करने को बोला तो मैं ये हाइड भी हो जाएगी अभी देखो। इट्स टेकिंग टाइम, दैट्स इट। तो एनिमेशन ही ऐसे बनाते हैं ना वो लोग कि आर्टिस्ट को पता होता है कि उसको कितने सेकंड्स का बनाना है, क्या करना है, आधा अधूरा नहीं चलता है उधर। अगर वो 2 सेकंड का फीड है तो 2 सेकंड का ही कंटेंट बनेगा, राइट। तो ये चीज हमें ध्यान रखना। तो ऐसे बहुत सारे मेरे पास स्टूडियो में ये ग्रीन स्क्रीन का जो सेटअप लगाया है, मैंने यूज किया है, जो आपको नहीं बताया अभी तक। और क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे हार्डवेयर है, उसमें टाइम बहुत लगेगा। व्हाट क्या बोलते हैं, 2-3 और वेबिनार करने पड़ेंगे उसके लिए। हम लोग के पास इतना सारा सामान हम लोग के पास स्टूडियो में पड़ा हुआ है। इवन आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये ग्रीन स्क्रीन लिटअप का भी हम लोगों ने काम किया है, तो प्रॉपरली लिटअप किया है। सर दिखा सकते हो आपके स्टूडियो का ग्रीन स्क्रीन लिटअप जो है थ्रू मोबाइल, ये देखो। तो आप देखो पीछे ग्रीन स्क्रीन प्रॉपर लिटअप करके रखा है हम लोगों ने। इवन आप मेरे पास सेटअप में जाओ करो, नहीं मैजिक मैजिक वाला, हाँ क्यों, हाँ करो, और उसको 100 करो उससे, नीचे नीचे नीचे, हाँ 50 लिखा ना वहाँ पे, क्लिक करो। ये देखो अभी 100 चेंज हो रहा है। अभी यहाँ से आशीष सर चेंज कर रहे हैं। आशीष दिखाओ उधर, इफेक्ट दिखाओ उधर, चेंज करो सर। ये देखो ग्रीन स्क्रीन का लाइटअप जो है ना वो प्रॉपरली किया हुआ है मैंने, तब जाके ये सॉफ्ट चीजें बन रही है, करेक्ट। तो ग्रीन स्क्रीन लिटअप है। अगर मैं बंद कर दूंगा, मान लो बंद करो सर, 0 करो उसको, अब फिर ग्रीन स्क्रीन करता हूँ मैं आपको, राइट। तो यहाँ पे ना आप प्रॉब्लम देखोगे, देखो ये अभी ये मास्क है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको, ये सब जो मास्क है वो यहाँ से है। ये बहुत सारी हैंगिंग लाइट्स है मेरे पास, हैंगिंग लाइट होने की वजह से वो ऑब्स्टेकल ऐसा बिहेव कर रही है, तो इसके लिए मैंने मास्क डाला है। बट आप जैसे ही इनपुट में जाओगे तो आपको ये दिख रहा है। ऑन करो सर अभी, यहाँ से ज्यादा अच्छा दिखेगा। जैसे ही वो ऑन करेंगे लाइट को, ये देखो 50% करेंगे तो इवन हो जाएगा लाइट्स, राइट। इवन वो एक लाइट्स और भी चालू है, उसकी वजह से वो पैच आ रहा है उधर, देखो बताओ ये वाली जगह पे। इसको बंद करो तो सर, तो हम उधर से भी बंद कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं, मेरे पास सॉफ्टवेयर से भी बंद कर सकते हैं। तो अब जहाँ चाहो वहाँ पे बंद कर सकते हो। आप देखो वहाँ पे डिमर लगा हुआ है, तो डिमर से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो डिमर का भी बहुत बड़ा रोल रहता है आपकी लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज वी हैव डीएमएक्स लाइट्स। तो इन डीएमएक्स लाइट्स यू कैन कंट्रोल इंटेंसिटी ऑफ द लाइट्स आल्सो, करेक्ट। तो ये हो गया आपका। इवन अभी तुषार से आप बैठोगे उधर, एक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप देखो कि मैचिंग हो रहा है, मतलब स्किन टोन वगैरह बोलो या इसका सेचुरेशन बोलो, तो मैंने ये यहाँ पे कर दिया है, मतलब ब्यूटीफुली। अगर 1 करूंगा, 0.5 कर रहा हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड, देखो डार्क हो गया है। अगर मैं इसको यहाँ से इंक्रीज करूंगा, देखो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ये डिपेंड्स कि आपका कैसा सेटअप है, लाइट की क्या कैपेसिटी है आपकी। लाइट अच्छी होनी बहुत जरूरी है, राइट। देखो अभी स्किन टोन मैच हो रहा है विद द बैकग्राउंड कलर ऑल्सो। कॉन्ट्रास्ट आप देखोगे तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भी है, तो मैं 0 करता हूँ कॉन्ट्रास्ट, तो ग्रे हो गया। बट जैसे ही आप उसको इंक्रीज करोगे, धीरे 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 ये बहुत ज्यादा डार्क कर दूंगा तो
मैच नहीं हो रहा है, तो यू हैव टू मैच इट 1.2 समथिंग डाल के मैच कराऊं। तो आपको कैसे पता चले कॉन्ट्रास्ट कितना रखना चाहिए कितना नहीं रखना चाहिए? तो बोले यहाँ पे जो डार्क दिख रहा है ना, उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करता हूँ ये देखो डार्क कितना है। तो अगर ये बहुत ज्यादा है तो 1.15 ये हो गया आपका। नाउ सैचुरेशन मैं 1 करता हूँ या 0 कर दूंगा, 0 तो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। उसको जैसे ही मैं ऊपर लेके जाऊंगा वैल्यू को, तो धीरे धीरे कलर आ रहा है। कलर का जो इंटेंसिटी है वो आपको देखना पड़ेगा कि कितना, जो कलर का जो टेम्परेचर है कितना रखना है। जितना ज्यादा बढ़ा होगा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसका, इतना चाहिए नहीं अपने को। हम मैच करेंगे ये वाले कलर के साथ थोड़ा सा, क्योंकि ये जो सोफा का कलर है ना वो सिमिलर ऑफ दैट फ्रेम, ये फ्रेम के साथ ही है। तो हम करके भी देख सकते हो आप। हाँ, ये मैच हो रहा है, राइट। तो छोटा सा वैल्यू है बट इट अफेक्ट्स अ लॉट, करेक्ट। तो ये आ गया। कोई डाउट सर यहाँ तक? नो, गुड। सो मुझे लग रहा है आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को, या तो नहीं समझ में आ रहा है? दोनों में से एक, क्योंकि बहुत कम लोग पूछ रहे हैं। तो कम लोग पूछ रहे हैं तो ऑब्वियसली दोनों में से एक कंडीशन हो सकती है। सारी चीज समझ में आ रही है, सारी चीज समझ में आ रही है, करेक्ट। तो पूछो, आप लोग पूछोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा, इंफॉर्मेटिव नहीं रहेगा ज्यादा। बट एनीवे, तो ये वो ओवरऑल हम लोग जो ब्रॉडकास्ट मोशन डिजाइन की बात कर रहे हैं वो एक ये प्रोसेस है। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस अवेलेबल है मार्केट के अंदर, प्रोडक्शन हाउसेस के अंदर, जो आप यूज कर सकते हो इवन, राइट। यहाँ पे बताने लायक बहुत सारी चीजें हैं बट मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा, करेक्ट। तो आप देखो यहाँ पे नेट भी ऑन है अभी, वन रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया है, जबकि मैंने रिकॉर्ड डाला है यहाँ पे। जैसे ही रिकॉर्ड यहाँ पे डाला तो यहाँ पे रिकॉर्ड बना दिया, बट वो कैमरा में भी रिकॉर्ड आ जाता है ये वाला, ओके। ऑडियो भी रिकॉर्ड करना है तो ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो आप इफ यू वांट, ओके। इवन आपके अंदर कोई भी चेंजेस करना है, या मैंने जैसे बताया ये स्क्रीन का चेंजेस करना है, स्क्रीन का भी बात नहीं किया हम लोगों ने, खाली जस्ट दिखाया मैंने आप लोगों को। तो ये मेरे सारे स्क्रीन के हैं ये, ठीक है। तो आप कोई भी, मैं इसको एक काम करता हूँ, देखो सब स्क्रीन से चला गया, ये सब स्क्रीन से चला गया, कोई भी स्क्रीन पे अवेलेबल नहीं है कोई भी चीज। तो इफ यू वांट टू मेक इट देन यू जस्ट प्लग इट इनटू दैट बिग स्क्रीन। तो मुझे पता है कि वो साइज कौन सा है, फुल एचडी चाहिए मुझे और बिग स्क्रीन के लिए चाहिए। फिर आता है स्टेडियम, तो स्टेडियम में हम देखो कि कहाँ पे आएगा वो, तो स्मॉल में आ गया। ये भी एक छोटा सा एक स्टेडियम का ही है शायद, देखने पे वर्टिकल में नहीं जाएगा, स्मॉल स्क्रीन में जाएगा, तो ये आ गया। इवन फॉर दैट वर्टिकल ऑल्सो यू कैन हैव इट वर्टिकल वीडियो ऑल्सो, बट ध्यान रखना कि वट एवर द साइज ऑफ योर वर्चुअल स्क्रीन वो ऑटोमेटिकली नहीं करेगा, आपको मैन्युअली उसको करके देना पड़ेगा। अगर फुल एचडी है तो फुल एचडी वीडियो चाहिए हॉरिजॉन्टल, अगर वो वर्टिकल है तो वर्टिकल फॉर्मेट में रेंडर मार के आपको लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आप वर्टिकल रेंडर मारा है और आप हॉरिजॉन्टल में यूज कर रहे हो, वो लेगा जरूर। अगर मैं मान लो वर्टिकल को यहाँ पे डालता हूँ फॉर एग्जाम्पल, फॉर टाइम नहीं, सॉरी इसको मैं डालता हूँ, इसको मैं डालता हूँ, मैं यहाँ पे स्मॉल में डालता हूँ, तो देखो पिच का हुआ हो जाएगा या ऐसा कुछ तो आएगा। आप देखो यहाँ पे आउट भी देखोगे ना तो आपको ये इतना ही वीडियो है, देख रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं लोग। तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि आप जब भी कोई चीज आप यूज करो ना, कर लेता हूँ, दिख रहा है ये फटा हुआ स्ट्रेच, तो वो नहीं चाहिए अपने। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि जो भी आपका स्क्रीन रहेगा वही आपके पास रेजोल्यूशन भी होना चाहिए, करेक्ट। तो एक ही आ गया। अभी आशीष सर काम कर सकते हो आप दोनों जन रहो उधर खड़े रहो या बात करो, एक जन बैठो,
डिस्कस करूँ, तो आप देखो मैं रिकॉर्ड करता हूँ आपको। अभी तो मैं जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए दिखाया था, अभी एक्चुअल हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। दे विल गेट टू नो कैसा रिकॉर्ड होता है ओवरऑल। थोड़ा पीछे चले जाओ, हाँ बस 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 बस। तो ये अभी रिकॉर्डिंग मोड में मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ से मैं अभी रिकॉर्ड स्टार्ट करता हूँ, राइट। जैसे ही रिकॉर्ड किया मैंने, मैं यहाँ पे आ गया एंड प्रोग्राम स्टार्ट। ये है जंगल कप, आप देख रहे हो, ब्रॉट टू यू बाय द वर्चुअल रोशन एकेडमी। इसके ऊपर आपका ये ग्राफिक्स है, इसके ऊपर टीम का भी आ जाता है। इफ यू फील कि मुझे स्क्रॉल नहीं चाहिए तो ऑफ कर दो उसको, चला जाएगा। टीम्स का भी आ जाएगा, दोनों टीम का आ जाएगा, आप देखोगे तो। इवन नेक्स्ट मैचेस कब आने वाले वो भी बता देंगे, और फाइनल का जो पाथ क्या है वो भी यहाँ पे दिखाया जाएगा। फिर आप देखो लाइव में आ जाओ, तो सीधा लाइव में आ जाओगे आप, एंड आपका रिकॉर्डिंग ऑफ अगर आपको करना है तो। हर एक चीज का शॉर्टकट आप दे सकते हो यहाँ पे, दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो वापिस आप यहाँ पे चले जाओ, और रिकॉर्डिंग जो हुआ है वो यहाँ पे हुआ है, ये वाला ठीक है। So this is the way you have to plan properly and execute it. तो मोशन ग्राफिक्स जितना रिचर बनाओगे ना, उतना ही अच्छा है आपके ओवरऑल ब्रॉडकास्ट के लिए। क्योंकि आप एशिया कप देखोगे ना अभी, तो एशिया कप का जो ग्राफिक्स है इस बार का, वो बहुत अच्छा लगा था लास्ट टाइम के कंपैरिजन के हिसाब से। इवन वर्ल्ड कप में भी ऐसा ग्राफिक्स मैंने नहीं देखा है। सो आपका ये ओवरऑल आउटकम है। यस, तो ये हमने जो बात किया है वो ट्रैक कैमरा सेटअप लेके बात किया है। क्योंकि हम जब भी कैमरा मूव करते हैं तो यू विल नो कि जो एसेट्स है, मतलब प्लेट और सीजी बैकग्राउंड, वो दोनों जो है सिंक एक दूसरे के साथ, जैसे रियल कैमरा में होता है वैसा ही। ऐसा लगेगा कि द पार्ट ऑफ द आपका सीन है। तो तुषार जो बैठा है, जहाँ पे हमने तुषार सर जो बैठे हैं सोफा पे, और जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड एक दूसरे से सिंक है, ऐसा लगेगा। ऐसा फोर्स पर्सपेक्टिव जैसा आपको फीलिंग आता है ना, वैसा आपको फीलिंग आएगा कि ये सही जगह पे बैठा है बंदा, करेक्ट। तो ये है। एनी डाउट सर, क्वेरीज, क्वेश्चंस? सेट में देखो। Okay, so sir, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा. Like someone asked, can you give an idea on how to mask the physical hanging on-set lights? Yeah, somebody is asking how to mask physical hanging lights. We are masking it. तो प्रो में जाओगे ना, मैंने जो बताया है आपको, राइट। तो यहाँ पे जाओगे ना, तो आपके मास्क दिख रहा है, कोई मास्क का मॉडल, गार्बेज मास्क। तो मैं गार्बेज मास्क में जो है ना, यहाँ पे मैंने बॉक्स लिया है। तो आप यहाँ पे जाते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, स्टूडियो में जाता हूँ। तो स्टूडियो में दिख रहा है आपको पैच, बॉक्स जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ऐसे टोटल मैंने इतने बॉक्स, 5 बॉक्सेस यूज किए हैं इसको मास्क करने के लिए। तो क्या कर रहा है, जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे फाइनल में, तो वो निकल जाएगा। मास्क विजिबल कर सकते हैं, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कर सकते। अभी मान लो कि मैं यहाँ से एक मास्क डिसेबल कर रहा हूँ, देखो लाइट आ गई यहाँ पे, राइट। मैं सबको डिसेबल कर देता हूँ, देखो तो ऊपर का जो भी हैंगिंग लाइट वो सब डिसेबल हो गया। तो आप कनेक्ट करोगे जैसे ही, तो आपको कनेक्शन मिल जाएगा, गायब होता जाएगा लाइट, ठीक है ना आपका। तो स्टूडियो में भी वैसे ही होता है। स्टूडियो में क्या होता है कि हाइट थोड़ा ज्यादा होता है, लाइटिंग इससे भी, क्योंकि स्टूडियो बड़ा होता है तो लाइटिंग भी बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पे इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं आती मास्किंग वाली, जो प्योर कॉर्नर में कोई भी चले जाओ आपको सेम सेटअप मिलेगा। तो ये उसका मतलब प्रोफेशनल जो स्पोर्ट्स स्टूडियो रहता है, जैसे ESPN हो गया, सोनी हो गया, उस टाइप से कोई भी स्टूडियो आपको देखने को मिलेगा। वहां पे ईच एंड एवरी हार्डवेयर प्रोफेशनली यूज्ड एंड वेरी इक्विप्ड
the studio is very equipped with technology as well as knowledge also. अगर टेक्नोलॉजी होने से कुछ नहीं होता है, उसका नॉलेज भी होना चाहिए प्रॉपर यूज करने का. ऐसे बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग न्यूज चैनल्स है जिनके पास अच्छा खासा सेटअप है, बट उसको यूज नहीं कर पाते फुल स्पीड में, फुल आपके कैपेसिटी में. तो ये उसका ड्रॉबैक है अगर आपको टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है तो. एनीथिंग एल्स सर? Somebody saying echo sound now. It's I think it's done now because मेरा mic on रह गया था. That's why it was coming echoing. आपका आवाज नहीं आ रहा है मेरे को. Now it's coming. नहीं आ रहा है. Am I audible, guys? I'm audible. Your Yes, voice you're is not audible, coming. Umesh. Don't worry. Oh, sorry. Uh, Am I audible, okay. Anushka? Yes, yes, you're audible. Okay, great, Yes. great. So, Okay, so guys, am I audible? Confirm once, Anushka and Nupur. Yes, you are. Yeah, Yes, yeah. yes, you're audible. So guys, what I was saying, like, if you are saying we are pushing a button and everything is happening, so it was not possible to do that live once we are not having our prerequisites, right? So suppose that we have to make this set, yeah, probably from two days we are creating this set. Now we have to test it, like how our camera is going to sync with the our thing, right? So we have to sync our camera, we have to do our real-time camera tracking, we have to remove chroma real time, we have to add our graphics real time. So before doing broadcast, you need to do your homework first, and of course it's a time taking process. It's not going to happen like we can do a broadcast in half an hour. No, it's not going to happen, right? So you have to think like that. You have to do your pre-production that strong so that your broadcast will be like a buttery smooth, right? That's something we need to understand. Somebody is asking, do I need multiple engines to run a live virtual production, multiple inputs and outputs? Uh, yes, I think if you are having multiple engines, then it's well and good. Suppose that currently now we are doing our work in one engine and we are broadcasting in another thing, right? So that's something we are doing, and it's not recommended to use everything in single PC or single engine. So that will be toll on your PC. So yeah, multiple inputs and outputs, that's perfectly fine. Any other questions? ये सेटअप क्लीन ले सकते हो गए यहाँ पे कैम 1, कैम 2, कैम 3. अगर आपको स्विच भी करना है तो आप आराम से शॉर्टकट डाल के चल सकते हो. Okay. So whatever we have, right? The questions Sorry to came cut from you, the Umesh. audience, right? Sorry. The multiple Hello, cam. can you hear me? So you can switch those multi-cam. Yes, Anushka. Umesh, Yes. we have a question in the chat box. Audible? How can I Am I stream audible? from Oximetry to YouTube or Zoom? There is another question called how can I stream from Xmetry to YouTube or Zoom? Yes. Sorry. Just to answer that question, yeah, we can. We need to set our Xmetry for our Zoom kind of stuff, right? So yeah, it is possible to stream on either on Zoom or on YouTube, and with the help of Xmetry. In fact, we were planning a session where we are going to do same thing, right? So yeah, it is possible, and definitely we are going to do that. So this is our OBS setup, right? So with the help of OBS and Xmetry, you will be able to do your live streaming. So again, OBS is a different scenario. Like if you need, we can in fact do a session on how to do a live using OBS and Xmetry. So that will be good. I think yes, we can do it. Over to you, Anushka. Okay, great, Ashish. I think that was the only question on the chat box. Yeah. More than one camera. So you can switch it easily by assigning one shortcut. What we learned from that overlays, right? So same thing, you can define your
keyboard shortcuts, right? For an example, let me take a. Right now we don't have multicam. This is the C, right? So if I press it B, so no device. Obviously we don't have. Let me press C, no device. Let me press A, automatically it comes to the field of camera 1. So that's, you have to understand the process. Now there is one more thing which is path. You can make it, the only problem is here you should have that facility to manage. Like I'll just show you. So there is another question. Yeah. For multicam setup, do we need to have multi-camera tracker? मैं वही बोल रहा हूँ. Sorry sir. For a multi-camera setup, do we need multi-cam tracker? Multicam. Yes, multicam you need. So obviously you should have multicam. Suppose that I want to add something like if I want to use two camera in my current setup, so I don't need to use another set of hardware, which is YMARS. Only I need another rover, which will fix on my another camera. So in single Mars, we can use 3 rovers, right? So might be you guys are not able to see me. So what I need this. So in one Mars setup, we can connect 3 rovers, right? So that is something you need to understand. So if we are having 3 cameras, yes, one Mars setup will be more than sufficient to use 3 cameras. But if you are having 4, 5, 6 cameras, then might be you need another Mars setup to multiply that thing. So for 3 cameras, one Mars setup is okay. But if you want more than that, then again you have to go for another thing, another Mars setup. I think I answered your question, S.R. Sridhar. Questions. Do you use the Blackmagic Ultimate 12? Yes, we have that Ultimate setup also. So currently, but we are not using it right now. Where it is, yeah. Yeah, I can show it to you. I- So somebody asked Ultimate. We are having our Ultimate setup over here. So yes, we are having Ultimate, but for today's session, we are not using Ultimate HD. For later sessions, probably we are going to dedicate a session on Ultimate HD as well. So I think we answered your question. There is one more question. Can you work us through the connections from camera to Unreal Engine or Xamatrix and switcher to screen broadcast? See, as I told you, today I am just showing you the broadcast designing part. But whenever you have any broadcast systems, right? So obviously these are the technologies, tools, hardwares. It's a mix of many things. So obviously, yeah, अगर आपको स्विच करना है किसी भी चीज के लिए, तो अभी तो मैं अनरियल से कर रहा हूँ, सॉरी अपना एक्सीमेटर से कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम आपको अगर कोई हार्डवेयर के थ्रू करना पड़ेगा, जैसे कि मेरे पास पहले लाइट्स के लिए हम लोग के पास एक हार्डवेयर था जो कंट्रोलर फॉर्म में काम करता था. तो जो भी मुझे लाइट्स का इंटेंसिटी कम करना है, फ्लिकर ज्यादा बढ़ाना है, तो दैट टाइम वी हैड अ सम कंट्रोलर, राइट. तो वो था. बट अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं सेम पर्पस के लिए आर्टनेट डिवाइस यूज कर रहे हैं जो कनेक्ट करता है मेरे कंप्यूटर के साथ. वॉट एवर द DMX लाइट्स वी हैव, राइट, those lights connected to our ARNet device and ARNet device connected to my system. So system control my overall DMX light setup. तो सेम वे अगर आपको ऐसे ही करना है तो आपको स्विचर की भी जरूरत पड़ सकती है. प्रोफेशनल में तो आपको हार्डवेयर ज्यादा ही चाहिए, एक दो हार्डवेयर से नहीं काम चलेगा, जो रिक्वायर्ड है वो तो चाहिए ही चाहिए. तो ये जो मैं ब्रॉडकास्ट डिजाइन के लिए बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक, दैट्स व्हाई आई वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग. So I'll add something over here. You can use Elgato Stream Deck 3. You can use and you can
assign different softwares, different windows to different buttons. So if you are having those things, yes, you can use Elgato Stream Deck as well. Anything? Yeah, already Ashish answered, right? For multi-cam setup, do we need to have multi-camera tracker? Yes, obviously we need it. Obviously, is required. Yeah, let's come back to the Unreal and Xamarin. So we are talking about that camera path, but currently we are using tracked camera. So if my camera is moving, automatically this background also respond, right? The you know that आपका कोई भी मोशन होता है ना, जो नजदीक वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत जल्दी फास्ट मूव होता है इन कैमरा पर्सपेक्टिव बोलता हुआ, और जो दूर वाला होता है वो लेट होता है. तो फॉर एन एग्जांपल अभी तुषार सर रोटेट कर रहे हैं, रोटेट करो एक मिनट. हाँ, इसको रोटेट करो. आप देखो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये सिंक है ड्यू टू दैट HTC Vive Mars. अगर नहीं होता मेरे पास HTC Vive Mars तो मुझे ट्रैकिंग वाला कैमरा नहीं लेना है, मुझे वर्चुअल स्क्रीन वाला कैमरा लेना है. गेटिंग माय पॉइंट? तो वर्चुअल स्क्रीन जो है उसका एक अलग बेनिफिट है, ट्रैक्ड कैमरा का एक अलग बेनिफिट है, इवन उसको AR एलिमेंट डालना है तो AR एलिमेंट का भी एक अलग बेनिफिट है. तो यहाँ पे आप देखोगे AR ओवरले दिख रहा है आपको, तो AR ओवरले बिहाइंड. तो ये जो चीजें है ना, मान लो कि मैं कनेक्ट करता हूँ, 1 मिनट, AR एलिमेंट मतलब सुपर इम्पोज ऑलवेज, राइट? बट इसका कुछ कर नहीं सकते तुम. क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी सुपर इम्पोज ही रहेगा. तो आपको जो भी सुपर इम्पोज करना है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इट. लेट मी शो यू वन मोर थिंग. सेट्स, या देखो ये है, तो ट्रांसपेरेंट चीजें रहती है तो समझ में ज्यादा आता है. इवन आपको रोटेट, स्केल, या आपको जो भी करना है वो भी आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. ऐसे बहुत सारे लोगों उसी हिसाब से बनते हैं. कहाँ गया ये रहा. दिस इज योर लोअर थर्ड, राइट? इवन आप यहाँ से बहुत सारी चीजें, ऑपेसिटी जो है 0.5, ये 0.5 में आएगा. इसको 1 करता हूँ मैं, ओके. या फिर आपको कोई ट्रांसफॉर्म करना है तो यहाँ पे बहुत सारे नोड्स भी अवेलेबल है. ट्रांसफॉर्म दिख रहा है आपको ये? तो यहाँ पे अलग अलग कलर के कोड दिख रहा है. तो जो कोड होगा, फॉर एन एग्जाम्पल, चलो मैं लेता हूँ एक चीज में ट्रांसफॉर्म, बट ये कनेक्ट होगा कि नहीं होगा? तो नहीं होगा कनेक्ट, ये राइट. क्यों? क्योंकि कलर जो है ना ये मैच नहीं है. तो येलो येलो होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, तो हो जाएगा वैसा है. तो दैट वे यू कैन मैनेज. तो आपको जो भी AR एलिमेंट परमानेंटली रखना है वो आप यूज कर सकते हो. अगर आपको लोगो डालना है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो आपको फुल HD का कैनवास लेके इतना ही लोगो का साइज होना चाहिए. तो यहाँ से भी एडजस्ट कर ही सकता हूँ. फॉर एग्जांपल मान लो ये लोगो है, राइट? मैं ऑन करता हूँ इसको, तो ये आ गया. जो इसको स्केल करना है तो मैं स्केल करता हूँ 0.15, और उसका पोजीशन जो है से एडजस्ट कर सकता हूँ. क्लियर? तो ये हर बार रहेगा, मतलब हर टाइम रहेगा आपके पास. एनीथिंग एल्स गाइस? क्या बोलते हैं? Yeah, one Visa question की- is there. Yeah. In Vijati, the control room plays the role of managing and operating all the live graphics, virtual sets, and data-driven content during a broadcast. यस, यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. कंट्रोलर जो है ना यहाँ पे भी बनता ही है. यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते हो. तो आप कहाँ देखोगे? आप यहाँ पे आप ला सकते हो उसको, मतलब कस्टमाइज बोलते हैं ना जिसको, तो आप यहाँ पे ला सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. जो आप विजार्डी में है वैसा ही आपको यहाँ पे भी आपको मिल सकता है.
तो आपको जितने भी डेटा कलेक्ट करने हैं, जो आपके टाइमलाइन के हिसाब से मैप किया है आपने, जो शो की टाइमलाइन रहेगा उस हिसाब से मैप किया है, तो कंट्रोल रूम में आप उसको लेके आ सकते हो, कोई इश्यू नहीं। एनीथिंग एल्स गाइस? Please ask questions if you have any. Please go ahead because we are almost about to end the session, today's session. ओके, तो कुछ लोग मुझे बोल रहे थे सर कि सर आपका ब्रोशर्स वगैरह है क्या? तो मैं यहाँ पे मेरी वेबसाइट जो है ओपन करता हूँ। वर्चुअल वर्क्स एकेडमी लिखोगे इसको, तो यहाँ पे पहले ही ये आ जाएगा, राइट? तो यहाँ से आपको अगर कोई भी ब्राउजर चाहिए तो आप डाउनलोड करके यहाँ से ले सकते हो। इवन लोग का यूट्यूब चैनल है, आपको डेली अपडेट चाहिए तो आपको ये इंस्टाग्राम का भी मिलेगा। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी स्टूडेंट का वर्क भी है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से। इवन ओपन, Meanwhile, he's showing SR Sridhar. Yes, we can do that. We can show our entire setup, but for today's it will be too much, right? So today only we are doing whatever mentioned in the session, and for next time definitely we are going to show you how our hardware connections are. So might be that will be good to show you how our system works. So probably we are looking for that thing, how our hardware connections happen, right? So probably next time definitely we'll do that. और यू I कैन hope विजिट अवर एकेडमी ऑल्सो। अगर आपको कुछ लाइव डेमो देखना है तो आप एकेडमी को विजिट करो, उसका एड्रेस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये रहा, ये हमारा एकेडमी का एड्रेस। वी आर इन अंधेरी वेस्ट नियर अंबोली चर्च। तो आप 9th फ्लोर पे आ जाओगे तो आपको द वर्चुअल वर्क्स एकेडमी मिल जाएगा। तो आपको जो भी so. लाइव डेमो है तो आप आराम से आ सकते हो, बट या बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर डेमो। डेमो के लिए ऐसा नहीं कि कोई आ गया मैं तुरंत चालू कर दूँ, तो आपको अपॉइंटमेंट लेके आओ तो आपको प्रॉपर डेमो मिलेगा, मतलब ऐसा। Okay, that will be great. In fact, you are coming to Broadcast Expo, then you can come down to Amboli Church. It's in अंधेरी वेस्ट। Andheri, and you can go to website and definitely you can see the address. And if you're free, you can come and you can visit us. करेक्ट। सो एनीथिंग एल्स Ashish sir? There is another question called, if during a live broadcast a graphic goes on air before the scheduled time, how would you handle it? Normally it won't happen because if I am scheduling something on time, it will go on time. That's how hardware works, right? But if some bad day you are having, and in suppose that you want to schedule a graphics for 4 a.m. or 4 p.m. and accidentally you are typing it 3, so definitely you cannot do. It's a goof up, right? So it's very rarely happen, but yeah, normally it won't happen. Any other questions, please? Yeah, recorded session will be available on our YouTube channel. You can go and you can subscribe it. And probably by tomorrow or day after tomorrow, we are going to upload it on our YouTube channel. There is one more question. Is the academy open to international student? Yes, of course. We are very happy to teach them. Yeah. How long is the academy? The website is not responding to non-Indians because I don't have a local number. So send me your email ID and mobile number. So I will get back to you. Okay, good. So we will arrange a meeting online, right? So it's not an issue. So I will share Teams link with you so you can understand easily, and whatever your queries, we will try to solve it.
So I think we have received your query and we are working on it. Thanks for joining today. And we received your inquiry. We received your mail. Received your number, which you shared on website or Facebook page, I think. So it's good that you joined, and definitely we are coming back to you very soon. Utkarsh is saying, can you explain how Vijati integrates with newsroom system during a MOS protocol and why the currently we are not using Vijati, so we are not able to help you in this, but definitely uh, uh, if we will get our hands on Vijati, definitely we'll do that. So currently we don't have any access to Vijati, Utkarsh. Any other query, please go ahead. So, if anybody is over here in Mumbai, and I'll definitely recommend to please visit us because whatever you have seen in today's session is just a 5 to 10%, not more than that, right? Uh, Most of you are guys are asking how your connections happened, how your Exmet is talking to your camera, how your camera is talking to your live camera tracking, so these kind of things we cannot explain in 2 hours or online. Probably I'll definitely recommend please visit us, and that will be good for us to explain each and everything. If you're going to see it, how we are connecting our camera, how we are connecting our tracking devices, that will be easier for you to understand and think this technology in a better way. So that's our request. And yeah, please go ahead, any questions? We have 5 more minutes. I hope you have enjoyed it today's session, and please do visit us. Please give feedback on our Instagram, on probably on our website. How to fix appointment to visit your place? You can visit our website, and there you can call us, and of course we'll fix your appointment. So we have a toll-free number on our website. You can go and we can check. Also, we are sharing it in chat, so you can check. Thanks Sridhar. Any other query, any other questions, please go ahead. I think that's it. Thanks everyone for joining us, and it was a nice interacting with you, and hopefully in coming future we are planning for a few more sessions for you guys, and it will be again a very interactive and very good session. So thanks once again everyone, and see you in next session.